Okay, ma'am. So we are starting today. Yesterday, what we have finished? Yesterday we have finished the which sorting? Quick sort, bubble sort, insertion sort, and selection sort. We have discussed their complexity, time complexity, and their program and their methods how to be sort the data using these techniques. So today we are going to discuss about the remaining sorting, which are remaining radix sort. I am sharing window to you people. Window is visible to you? Hello. अभी तक तो नहीं Now वाला। विजिबल हो रही है मैम। अब विजिबल हो रही है? विंडो विजिबल है कि नहीं अभी? I will share again. Yes, ma'am, visible है। Okay, so today we are going to discuss the radix sort. Clear? So what is the radix sort? Sorting, as we know, we are arranging data in the ascending or descending, any order we can arrange in ascending orders also as well as descending order. In ascending order, the data will be increasing from lower to higher, and in descending order, higher to lower. Same, we are coming to the next step of radix sort. That is also a one sorting techniques to sort the given element. Radix means what is the meaning of radix? It is a base system of numeration. It is represent the base system of the numeration like 10 base, 2 base, 8 base, 10 base. Binary number is a 2 base, decimal number is a 10 base, and octal number is 8 base, and hexadecimal number is 16 base. So like this way, the radix sort is taking the will work on the decimal numbers in the base of 10. This is the algorithm which is a non-cooperative algorithm, comparative algorithm. We are not comparing the element in the radix sort. As we have already discussed, quick selection and other sorts, we are comparing one element to another and another one with another element, or like that we are comparing and exchanging the elements. Here we are not comparing. This is the another technique. This radix technique is just like a bucket sorts. It is work just a bucket like that. For example, we are having a collection of fruits. Some fruits are all are mixed, banana, apple, and all. So what we will do, we just pick the banana in one, put it in one bucket. Apple we will put it in another buckets, and another fruits we will put another buckets. We are having a number of buckets, and we are keeping these things in that buckets. So हम उसमें buckets में अलग अलग रख लेंगे, इस टाइप से उनको हम sort कर सकते हैं. So same method we are using here in the radix sort also. This is the structured key sortage also we can call. It take minimum time and minimum space, minimum movement of the element it will take, and time also it will take the less. And there is a no need of the comparison of the. These are some basics about the radix sorts. See, we will take the example of the radix sorts. This is the element we want to sort, 34 to 13. This is the list is of the zone. This is the elements which we want to sort with help of radix sorts. As we have told, we will take a decimal values. What is how many number in the decimal value? It will start from 0 to 9. 0 to 9 are the decimal values. 10 base. The number which are having 10 base are having the value between 0 to 9. So we have created 9 bucket here, 10 bucket, 0 to 9. One bucket 0, second 1, 2 to 9 buckets. And now we will start keep these values in these buckets. But what will be the rule to keep the value in these buckets? वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास क्या रूल होंगे जिसकी हेल्प से हम इस वैल्यू को पुट करेंगे? वैल्यू को पुट करने के लिए हमारा सबसे पहला रूल होगा, आपने हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 1 जा 10 जा 100 जा एंड 1000 सा एंड लाइक दिस वे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन हम पढ़ते हैं ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार लाइक दिस वे. सो हम इसमें क्या करेंगे, वी विल टेक द लिस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू. यहाँ हम इसको सिंपल कहें तो लिस्ट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू या लिस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, लेफ्ट वैल्यू या राइट वैल्यू. तो हम यहाँ पे क्या व्हाट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वैल्यू. जैसे 34 है तो सबसे पहले हम इनका इकाई का जिसे कहते हैं वंस नंबर, उसको हम केयर करेंगे. उसको ध्यान में रखते हुए वी विल कीप दीज वैल्यूज इनटू द buckets. We will mind the last value of the digit. Any 34 is a one digit and its last value is 4.
and 3 is the second value. That 4 is the 1 जा and 3 is the 10 जा. यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो 4 है वो इकाई का अंक है, 3 है वो दायिकांक. इफ वी टॉक इन ए मैथमेटिकल इन सिंपल लैंग्वेज, तो हम पहले सभी का इकाई का अंक देखेंगे और उस अंक को, उस नंबर्स को देखते हुए we will keep these value inside these buckets. जैसे फॉर एग्जांपल 0 है लास्ट में 5 0 को, तो इसको हम किस में रखेंगे, 0 वाली बकेट में रख देंगे. 2 0 है उसको भी हम 0 वाली बकेट में रख देंगे. 3 4 है उसको हम 4 वाली बकेट में रख देंगे. 1 2 है उसको 2 वाली बकेट में रख देंगे. 7 2 है उसको भी 2 वाली बकेट में रख देंगे. यानी सबसे पहले हम किस बेस पे रखेंगे कि उसका जो वंस एलिमेंट है, वैल्यू है, उसके बेस पे हम उनको बकेट असाइन करते चले जाएंगे. क्लियर हुआ? उसके बाद सेकंड स्टेप में टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे. थर्ड स्टेप में फिर हम उसको देखेंगे 100 के अकॉर्डिंग, फिर 10,000 के अकॉर्डिंग, फिर मिलियन के अकॉर्डिंग, फिर 10 बिलियन के अकॉर्डिंग. लाइक दिस वे वी हैव टू बी कंपेयर. So take one step. First step, we have taken 34. 34 we have kept into the 4. Have you seen? This is 34 in the bucket of 4, and another one is 213. This is where in the third bucket, last digit. You will check the last digit only. We have kept 213 in the third bucket, and 20 into the 0th bucket, 50 also in 0th bucket, 212. 12 is in a second bucket, 72 also in second bucket, 25 into the 124 we have put in the fourth bucket, 525 in the fifth bucket, and 45 we have kept into the fifth bucket, and 56 we have kept into the sixth bucket. क्लियर हुआ? इज इट क्लियर कि हमने क्या किया, जो जिसका इकाई का अंक था उसके अकॉर्डिंग जिस सीक्वेंस में नंबर आते गए हम उसी सीक्वेंस में उस बकेट के अंदर डालते चले गए. सबसे पहले 34 था तो ये लास्ट डिजिट इसका 4 है तो हमने 4th नंबर बकेट में डाल दिया. 213 था उसका 3 नंबर है तो इसको 3 बकेट में डाल दिया. और 20 है उसके लास्ट में 0 है, इकाई का अंक जो 0, इसलिए हमने 0th बकेट में डाल दिया. 1 2 के लास्ट में 2 है तो वो हमने सेकंड बकेट में डाल दिया. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हमने कैसे कैसे नंबर रख दिए? अंजू, उजाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Now next step, what will be the next step? Next step, we will keep these values out in the same sequence which we have inserted. जिस सीक्वेंस में हमने इन वैल्यूज को इंसर्ट किया उसी सीक्वेंस में हम पहली से लेके लास्ट तक बाहर लिस्ट में डाल देंगे, वापस निकालेंगे. तो ये हमारे पास अगर हम इन वैल्यूज को बाहर निकालते तो सबसे पहले हमारे पास क्या डाला था हमने, 20, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में पहले जो एलिमेंट डाला था वो 20, फिर 50, फिर सेकंड फर्स्ट वाली खाली है, सेकंड में 12 एंड 72, थर्ड में क्या था 213, 4 में क्या 34 और 124, देन फिफ्थ में क्या है 25 और 45, और 6 में क्या था 56. दिस इज द सेकंड स्टेप कि हमने जितने भी बकेट्स में एलिमेंट निकाले थे जिस सीक्वेंस में उसको डाला था उसी सीक्वेंस में हम उस एलिमेंट को क्या किया, बाहर निकाल दिया और उसकी लिस्ट हमने डिस्प्ले कर ली. 0 से लेके चलेंगे, पहले 0 वाले एलिमेंट पे बकेट से हम निकालना शुरू करेंगे. इज इट क्लियर दिस स्टेप कि हमने कैसे एलिमेंट को बाहर पुट अप करना है लिस्ट के अंदर? शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप? हेलो, ये स्टेप क्लियर हुआ? अंजू, उजाला, विवेक? Yes, ma'am. Should we go to the next step? Next step again. So this is the sorted. Again we have to put the value into the bucket. But what will be the condition now? This will be the 10th location element. हम अब ढाई का अंक देखेंगे. अभी तक पिछले वाले स्टेप पे हमने देखा था इकाई का अंक. यहाँ पे हमें 10th एलिमेंट देखेंगे जिसको हम ढाई का अंक बोलते हैं. That is the second digit of the element. जो भी आपका डिजिट है, जो आपका नंबर है, उसका जो सेकंड डिजिट है उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे. तो सेकंड डिजिट जो है आपका उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 20 है. पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है 20. तो 20 का सेकंड डिजिट क्या है 2 है. 20 का सेकंड डिजिट क्या है 2 है. 2, ma'am. इसमें रखेंगे सेकंड नंबर बकेट में रख देंगे. 50 का सेकंड डिजिट कौन सा है? 2. तो इसको हम किस में रखेंगे? 5. फिफ्थ विकेट में रख देंगे. 1 2, हाँ फिफ्थ में, बिल्कुल ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 12, तो उसको किस में रखेंगे? फर्स्ट वाली बकेट में, क्योंकि उसका पहला डिजिट देखेंगे. 72 को रखेंगे. 72 को 7 में. 7 में. 213 7 में. नहीं 213 2 में. हाँ नहीं 213 को 2 में नहीं, सेकंड डिजिट देखेंगे. सेकंड डिजिट इज 1, so it will come to the first bucket.
थर्ड 1. देख रहे हैं हाँ, जो टेंस है ना, टेंस नंबर इज 1 सेकंड डिजिट. 34 किस में जाएगा? इन विच इट विल गो इन दिस बकेट? इट विल गो इन 3 में मैम. यस. 124 2 में. यस सेकंड डिजिट. सेकंड में 2 में मैम. यस. और 25 सेम अगेन इज फर्स्ट सेकंड डिजिट का भी 2 है तो ये भी 2 में ही जाएगा. 45 विल गो इन फोर्थ बकेट एंड 56 विल गो इन 50. So we have inserted all the element on the basis of tens in the location, in their location in these buckets. Clear? So now again we have to put this value out from the buckets and make a list. So what will be the list? Like this way we will make 12, 213, 20, 25, 124, then 34, then 45, then 56, then 50, then 72. Clear? So now what we will check? We will check the third element, hundreds number. जो hundreds था अभी तक हमने ones और tens देखा था. Now we will check the hundred element, 100 digit, third digit one. अब आप कहेंगे मैम इसमें तो 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनमें थर्ड डिजिट है, बाकी में तो है ही नहीं. Am I right? Hello? yes ma'am right. हाँ, but there is a value. अगर हम कुछ नहीं रखते तो वहाँ पे क्या होता है? बाय डिफॉल्ट 0 नंबर होता है. जैसे हमारे पास यहाँ 124 है तो इसका आगे हम 0 लगा सकते हैं, तो ये 4 का हो जाएगा. 25 का आगे 0 लगाएंगे तो कौन सी डिजिट का हो जाएगा? 3 डिजिट का हो जाएगा. तो 0 का मतलब 0th बकेट में आएंगे. जिसके आगे थर्ड एलिमेंट नहीं है और हम 100 की लोकेशन को देखेंगे तो जिनके आगे नंबर नहीं उसकी बाय डिफॉल्ट 100 लोकेशन क्या होगी? 0 होगी. तो इसलिए हम क्या करेंगे? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इन एलिमेंट को पुट अप करेंगे. तो जो सिंगल एलिमेंट है जैसे 12 है उसके आगे क्या होगा? 0 होगा तो 0 में रख दे. उसके बाद क्या है? 213 के आगे 200 वाली बकेट में 200 में जाएगा तो इट विल गो इनटू द सेकंड बकेट. उसके बाद 20 आएगा 0th बकेट में. 25 is also coming 0th bucket. 124 100 is 100 number, so it will go to the first bucket. Third digit is 1, so therefore it will go into the first digit. First bucket will go like that. Next 34 will give the 0. 45 also come in 0. 55 also 50 0. 56 will come also in 0 and the 72 also will come in 0. The same sequence we will display again, so you will find the sorted order data. Now you will see, we will get the sorted of the data in the sorted order. Clear? 12, whatever the sequence you have in Yes, ma'am. same sequence you have displayed, so you will get the data in the same sequence. Clear? This is the, which one? This is the radix sort. We also call it is a bucket sort because we are using bucket to sort it. Putting some buckets kind of things we are having where we are putting the value in it, and we are managing these elements in a sorted order according to their 1 जा 10 जा and 100 जा और 10,000 जा पोजीशंस. लोकेशंस के बेस पे, डिजिट्स के पोजीशन के बेस पे हम इसमें रखते हैं. हम ये कह सकते हैं कि जो डिजिट है उनकी पोजीशन देखेंगे. पहली बार हम फर्स्ट पोजीशन के बेस पे देखेंगे, सेकंड टाइम में हम सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को देखेंगे और थर्ड टाइम में थर्ड पोजीशन. ये डिपेंड करता है कहाँ तक जाएगा. मैक्सिमम डिजिट आपके कितने हैं किसी नंबर में, उतने टाइम तक चलता है. फॉर एग्जांपल हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं जिसके कितने डिजिट होते हैं, इसमें तो 3 थे मैक्सिमम. अगर हम ले लेते 5 6 3 4 तो उसमें कितने होते हैं? 4 डिजिट. तो जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम डिजिट होगा उतनी टाइम आपको विजिट करना पड़ेगा इसको. यहाँ पे हमारे पास 3 थे तो 3 पास हुए, 4 होते तो 4 पास हो जाते, 5 होते तो 5 पास हो जाते. इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसमें जितने नंबर प्लस आपका पास है दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो आपका बिग नोटेशन आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी. टाइम कम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ डिजिट पे. किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ डिजिट पे. तो अगर नंबर ऑफ हाँ तो आपका अगर जो नंबर ऑफ डिजिट है, अगर हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट है वो क्या है? फॉर नंबर ऑफ डिजिट इज यहाँ पे क्या है? 3, जिसको हम डी डिनोट कर सकते हैं. और नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या डिनोट कर सकते हैं? इज इक्वल टू के. तो हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या बन जाएगी? टीसी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? बिग नोटेशन ऑफ डी इंटू में के.
This is the time complexity of K. मैम PPT visible नहीं हो रही. Okay, I will show again. Is it visible now? Is it visible or not? Yes ma'am. So you see, we have asked. No ma'am visible नहीं. हो गई मैम. अच्छा, हो गई. So here you see the what we have put, number of digit is D and number of element K. So it depends on this. There is a no comparison required here. Only we need to be the bucket as per bucket, and bucket will be used as per the number of digits. How many time it will be used. This is the fix. Our bucket हमारी जो है वो fix है. It is already fixed. So the comparison time complexity will be the number of digit into the number of elements. That will be the comparison. Now that will be the time complexity of the algorithm. Clear? Should we go into the clear हो गया ये आपको Reddick sort? Should we go into the next sorting? Ujala? Okay. Yanju? Vivek, are you here? Yes, ma'am. Vivek, is it clear to you? Reddick sort? Vivek has gone or he is here? Vivek, is it clear to Yes you? ma'am, clear है. आगे चले. नेक्स्ट हमारे पास है मर्ज सॉर्ट. नेक्स्ट Yes ma'am. हमारी है मर्ज सॉर्ट. 2-3 सॉर्ट हमारे रहते थे कल. मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट. तो मर्ज सॉर्ट में क्या होता है? दिस इज द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड द क्विक सॉर्ट एंड व्हाट sorting. Another sort yesterday we did the same, like it is a divide and conquer methods. This is used also it is dividing in the element into the two group, and after sorting dividing into the group it will again back to the merging. So it is used the divide and conquer method. So it will take the list and list will be divided into the groups till it not be sort. It will till it will be divided into the single element. After that it will merge it in the sorted order. Sorted order में इसको merge करेगा, उसके according आप इसको merge sort कहते हैं. That's why it is called the merge sort. Clear? So this is the element and we will apply this sorting on merge sort. It is very easy comparatively to other sorting. Here see we have taken these are element and we divided these element into two groups. हमने mid से divide कर दिया. एक side में left से जो mid में ले लिया हमने element को, और आधे element हमने एक side divide कर दिया और half element एक side. It's not compulsory कि both sides should be equal. It's depend number of element कितने हैं. अगर odd number है तो equal आ जाएगा, odd number नहीं है तो ना, even number है तो equal आएगा, odd number है तो equal नहीं आएंगे. एक में किसी में आपका less होगा, किसी में हो सकता one part contain less element and one part contain some one or two more elements. So like this way we have divided into the group. Now there is a two group. Take one group that also divided into the two parts. See 13, 12, 10, 3, 6 is divided into two parts, 30 and 12, and another will 3, 6 and 10, 3 and 6. Again this group is also again divided into the 30 and 12. So here it is again single. Now 3, 10, 3, 6 is also divided into 3 and 10 and 3 and 6. Now again another part also same like this, 67, 70 and 21 and 81, and again they have divided 67, 78, 21 and 81. This is already partition. ये इस लिस्ट में तो एक partition रहता है. यहाँ पे आपका partition था जो 10 था, 10 और 20, 10 3 को हमने 10 और 3 में डिवाइड कर दिया, और बाकी वापस क्या करेंगे उसके बाद मर्ज करना शुरू करेंगे. जो जो सिंगल एलिमेंट थे that we have start to merge, but merging time we have to be sorted. कंपेयर करेंगे और तभी आप इसको सॉर्ट करेंगे. तो यहाँ पे आपने क्या किया, 3 और 12 था हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया 30 और 12. पहले फर्स्ट लोकेशन पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में 3, 30 and 12 था, तो ये so it is merged in order of 12 and 30. Same 10 and 3 will be merged in 3 and 10, and 6 also there, 6 also merged, then it become a sorted order 3, 6 and 10. Clear? Same this side, in the right side also we have merged 67, 78 and 21, 81. This is already in a sorted order, so it will become also a sorted order. Now we will merge the 12, 30 and 3, 6, 10 into a one group. So it will become 3, 6, 10, 12 and 30. We are comparing and merging these elements. सबसे पहले हम 12 को किससे कंपेयर करेंगे, 3 से कंपेयर करेंगे. 3 लेस है तो पहले 3 आ जाएगा. फिर 12 को किससे कंपेयर करेंगे, 6 से कंपेयर करेंगे. अगर 6 लेस देन इज 12, so 6 will be inserted in the
sorted list. Again 12 we will compare with the 10. So it is 10 is less than 12, so 10 will be inserted, then 12 will, then the 2, 12 and 30 is remaining, so both will be inserted, 12 and 30. Same here also we will do 67 will compare 21, 21 is less than 67, so it will be inserted. Now 67 will be compare with 89, so 67 is less than, therefore 67 will be inserted first time. Now 89 will be compared with 78, 78 is less than, so it is inserted first, then 89. Like this way we have merged. Again these two lists will be merged and we will compare with it. 3 will be compared with the same, 3 will be compared with the 21, 3 will be inserted, then 21 will compare with 6, 6 inserted, then 21 compared with 10, so it is inserted, then 12, then 30 is when we are comparing 21 with 30, then 21 is less than 30, so 21 is inserted first, then 30 will be compared 67, so 30 is less, so 30 is inserted, then 67, 78 and 89, the remaining element will be inserted as it is. So like this way, first it will be divided into the part and again it will be merged. Same we have applied, if you remember quick sort also applying, we have applied the same methods, but there we are taking one pivot value and on the basis of this value we have divided searching and sorting. Clear हुआ? This is the merge sort. ये it is very easy comparatively to अगर आप किसी भी चीज को मिक्स कर रहे हो तो उसको sorted order में मिलाते हुए merge कर देंगे, इसको group कर देंगे. ग्रुपिंग करते टाइम पहले उनको बिखेर लेंगे और उसके बाद उसको इंडिविजुअल बिखेर देंगे और बाकी उसको मर्ज करते टाइम उसको इंडिविजुअली, जैसे कई बार हमारे पास ताश की पत्ती होती है, जैसे कार्ड्स होते हैं, उसको हम मर्ज करते हैं और सॉर्टेड ऑर्डर में लगाते थे, उनको अलग अलग बिखेर लेते हैं और फिर उनको उठा के लगाते चले जाते हैं, कंपेयर करते हुए जो लिस्ट बनती जाती है उसमें कंपेयर करते जाते हैं और नई नई वैल्यूज को डालते जाते हैं. क्लियर? सो एल्गोरिथम क्या बनेगा इसका, हम बनाए तो फाइंड द मिडिल पॉइंट, डिवाइड द एरे इनटू टू हाफ में पहले हमने लेफ्ट और राइट ले लिया. लेफ्ट होगा आपका मिनिमम वैल्यू स्टार्टिंग और राइट होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों को जो ऐड किया एंड वी हैव डिवाइडेड 2, वो आपका मिडिल आ जाएगा. और एक से तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मर्ज सॉर्ट के बेस पे 2 ग्रुप बन जाएंगे, फिर दोबारा से इसको कॉल करेंगे. अगेन वी हैव डिड कॉल मर्ज सॉर्ट, देन अगेन वी विल कॉल मर्ज सॉर्ट फॉर द m+1 L to M क्या होगा आपका मिडिल होगा, और एक M+1 to R, 2 सॉर्ट बन जाएंगे. देयर विल बी 2 ग्रुप. जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट थे फॉर एग्जांपल 30, 12, 10 और 3, 6, तो 30 मान लीजिए 0 पे है और ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है और ये 4 पे है. तो हमने कहा कि 2 का और एक 3 का ग्रुप होगा, तो 2 का होगा ये क्या होगा 0 और 1, और ये कहाँ से होगा 2 से लेके 2, 3, 4, तो ये 2 से स्टार्ट हुआ और ये मिडिल तक, और ये मिडिल +1 से शुरू हुआ. मिडिल 2 था तो 0 और 1 यहाँ से शुरू होगा, 2 और 3, 4 ये आपका यहाँ से हो जाएगा. इस टाइप से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहले मर्ज सॉर्ट में हमने एरे के साथ एलोरम पास कर दिया और सेकंड पार्ट में हमने क्या कर दिया M+1 और R मिडिल तक. पहले आपने मिडिल तक लेके चले और सेकंड आप में हमने क्या लिया मिडिल प्लस, एक और को बताइए क्लास में, सेकंड हाफ में मेरे शॉर्ट में हमने क्या किया मिडिल +1 से, मिडिल के बाद से जितने भी एलिमेंट बने इस टाइप से हमने इसको डिवाइड किया. और उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, दोनों हाफ को दोबारा से पास कर दिया LMR और मर्ज कर देंगे. दिस इज द मर्जिंग सॉर्ट. दिस विल बी द एल्गोरिथम. दिस इज द एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग वी विल बी टेक इट लेटर. तो इस केस से हमने कहा कि हमारा जो वर्स्ट केस, हमने कल जो क्विक सॉर्ट किया था, यस्टरडे वी हैव डिस्कस द क्विक सॉर्ट, बट हमने उसकी वो नहीं डिस्कस किया था, आपको याद हो कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं थी क्विक सॉर्ट की, है ना. वी डिड नॉट डिस्कस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्विक सॉर्ट. हमने कहा था उसकी लेस होती है बट हमने डिस्कस नहीं की थी, तो मैंने इसको ऐड किया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम इसको कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट. तो उसमें मैंने यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सॉर्ट. Time complexity of the quick sort is best in case of data is unsorted and it is worst in case of data is unsorted. वर्स्ट केस में क्या अक्कर होगा कि अगर डाटा सॉर्टेड है तो हम जब भी पिक करेंगे, चाहे फर्स्ट से पिक करें चाहे लास्ट से, फर्स्ट से पिक करेंगे तो भी हमारा सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा और लास्ट से पिक करेंगे तो वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा. तो उस केस में क्या होगा, हम लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते. डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल एलिमेंट से होगा. जो आपने मैक्सिमम एलिमेंट किया और उसके साथ ग्रुप करोगे तो पूरा डाटा एक ग्रुप में हो जाएगा और वो इंडिविजुअल एलिमेंट एक ग्रुप में हो जाएगा. लिस्ट विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप.
सो वो इंडिविजुअल आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा वो कंपेरिजन है वो उतना ही कंपेरिजन हो जाएगा, उस एलिमेंट को हमें सभी एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी, सो वी कंसीडर अबव पार्टीशन स्ट्रेटजी वेयर लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज पिक्ड एज ए पिवट। द वर्स्ट केस वुड अकर व्हेन द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमने एक जिसको पिक किया उसको T0 ले लिया और Tn-1 और n इज इक्विवेलेंट टू दिस Tn-1 प्लस n। इस टाइप से हमारे पास, क्योंकि पार्टीशन हम करते हैं तो एक एक इंडिविजुअल का पार्टीशन होगा, तो वो हमने 0 मान के चले, और Tn+1 को ले लेते हैं तो वो हमारा इक्वल टू n कंपेरिजन होगा। तो वही कम्प्लेक्सिटी रहेगी जो हमारी बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट की थी, बिकॉज हर एलिमेंट हर किसी एलिमेंट से क्या होगा, कंपेयर होगा, क्योंकि पार्टीशन जो वो दो पार्ट में नहीं हो पाएगा, इंडिविजुअल एलिमेंट का पार्टीशन होगा। क्लियर हुआ? अगर आपके पास डाटा क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो आप अगर फर्स्ट एलिमेंट उठाएं या लास्ट एलिमेंट उठाएं या मिड का एलिमेंट उठाएंगे, जो एलिमेंट उठाएंगे वो अपनी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, तो आप उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए कंपैरिजन करेंगे, तो मैक्सिमम कंपैरिजन करने पड़ेंगे जब तक आप उस सेल पे खुद पे नहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट लेफ्ट में उससे छोटे हैं, राइट में उससे बड़े हैं, बिकॉज इट इज इन ए सॉर्टेड ऑर्डर। सो इट इज ए वर्स्ट केस। तो उस केस में हमारी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, अनस्क्वायर होगी। बट अगर डाटा आपका सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हमारी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, n log n होगी। वो कैसे होगी, n log n। n log n कैसे होगी कि जो भी आपके डाटा, आपने एक एलिमेंट को स्टोर कर लिया, उसको अलग से रखोगे, बाकी को 2 पार्ट में कर दिया, तो पहली बार आपने कितने किए, 2 पार्टीशन किए, एक एलिमेंट आपका रुक गया। सेकंड टाइम में 2 एलिमेंट आपके रुक जाएंगे, बाकी सभी एलिमेंट पार्टीशन में, तो जो एलिमेंट आपके रुकते चले जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और बाकी जो है वो पार्टीशन में डिवाइड होता चला जाएगा, तो बाकी की कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। सो इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी जो बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, log n। log n क्यों बनती है कि भी हर एलिमेंट कंपेयर करते हैं, तो जो मिड एलिमेंट होता है, पिवट पॉइंट, जो पिवट पॉइंट होता है आपका, वो क्या होता है, एवरी टाइम इट इज रिक्वायर्ड 1। सो 1 से कितने टाइम तक जाएगा, n तक जाएगा, तो टोटल आपका क्या हो जाएगी, इससे कंपेयर टोटल नंबर ऑफ n वो आ जाएंगे आपके, और बाकी जो डाटा है वो आपका किसमें हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। टोटल जितने भी आपके टोटल पहली बार n एलिमेंट कंपेरिजन होगा, उसके बाद 2, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, t बाई n, t बाई 2, पहली बार t बाई 2, तो 2 में डिवाइड करेंगे, इसलिए 2tn, वापिस मर्ज भी करना पड़ेगा, तो जब मर्ज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2tn। तो यहाँ से यहाँ पे हमारे पास n आएगा, और यहाँ से हमारे जो कम्प्लेक्सिटी बनेगी इसकी वो बनेगी आपकी n/2 से log n प्लस log n आपका कम्प्लेक्सिटी होगी, तो इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी आपकी क्या है, n log n। क्लियर? हेलो, तो हम अब हमारी जो कम्प्लेक्सिटी थी वो क्या है, log n। नेक्स्ट हमारा रहता है लास्ट हीप सॉर्ट। हीप सॉर्टिंग हमने रेडिक्स कर लिया और मर्ज किया, और नेक्स्ट है हमारा हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट क्या है, व्हाट डू मीन ऑफ हीप? हीप इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कलेक्शन ऑफ मेमोरी, एनीथिंग इज केप्ट इन ए ग्रुप इज कॉल्ड हीप। कुछ भी ऐसे ऊपर खापड़ से आपने एक के ऊपर ऐसे चीजें अरेंज कर रखी हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, हीप कहलाते हैं। ठीक है, तो हीप सॉर्ट एल्गोरिथम इज सेम लाइक अदर सॉर्टिंग, कॉमन सॉर्टिंग, लाइक ए कंपैरिजन सॉर्ट। दिस इज नॉट like radix sort, it is like a bubble selection or quick sort. It is also a comparison sort, but it is work just like a binary search tree, binary tree। जहाँ पे हमने बाइनरी ट्री में किया था, बाइनरी सर्च ट्री नहीं कहेंगे कि लेफ्ट में छोटा होता है, बड़ा राइट में बड़ा, वो नहीं चलेगा। दिस इज जस्ट हीप एंड इट वर्क एज ए बाइनरी ट्री। क्लियर? It will work as a binary heap data structure. It will be a binary heap structure ki you can have a one node and that can contain a 2 child only. Clear? It is similar to a selection sort. We find the minimum or maximum value in the list and put value at the end. ये हम दो तरह का हमारा जो heap होता है, it is 2 type. One is max heap and another is a mean heap. तो max heap में हम maximum value को लेके चलते हैं और mean heap में हम minimum value को लेके चलते हैं। तो ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट में भी हम जैसे मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करते थे, उसको अपनी फर्स्ट लोकेशन पे करते थे। यहाँ पे अगर हम मीन है तो मिनिमम वैल्यू को उठाएंगे, फर्स्ट लोकेशन पे रखेंगे। अगर आपका मैक्स है तो मैक्स में रखेंगे, बट इट विल वर्क जस्ट लाइक ए ट्री। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए हीप सॉर्ट। बाइनरी हीप मींस almost complete binary tree in which all leaf node at L level or at a L-1 level, and if there is a single child then it should be a left child। अगर उसमें कोई लेफ्ट चाइल्ड है तो सिंगल चाइल्ड होगा। और इस ट्री का हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो आपको याद होगा, हमने ट्री रिप्रेजेंटेशन इन एरे, हमने वी हैव स्टडी ना
एरे रिप्रेजेंटेशन को ट्री का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो एरे किया था उस वे से हम इसको डील करते हैं. इफ यू रिमेम्बर इट विल बिकम इजी फॉर यू. क्लियर? हेलो अंजू उजाला, आपको याद है हमने एरे को जो ट्री जो था उसको हमने एरे में रिप्रेजेंट किया था. उसका लेफ्ट चाइल्ड था 2n + 1 था और राइट चाइल्ड था 2n + 2 के बेस पे. उसी के बेस पे चलेंगे. और ऑलमोस्ट बाइनरी में क्या था हमारे पास, अगर सिंगल एलिमेंट है तो अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो हमारा लेफ्ट होगा. राइट को छोड़ के हम किसी खाली को छोड़ के अगले लेवल पे नहीं जाएंगे जब तक उस लेवल पे कंप्लीट नहीं हो जाता है. नेक्स्ट लेवल पे तभी जाएंगे जब एक लेवल कंप्लीट हो जाता है. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की फॉर्म में भी हम इसको कह सकते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, सेम वी विल डू. लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड वी विल बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ 2n + 1 और 2n + 2. As I have already discussed, there is a two type of heap, max heap and mean heap. So first step, whatever the data given, we create the heap, then we will be sort these data. यहाँ पे हमारे दो स्टेप हो जाते हैं. अगर हमारे पास डाटा गिवन है, ये थोड़ा सा हमारे लिए लेंथी पड़ता है क्योंकि अगर हीप गिवन है फिर तो इजी हो जाता है. If the data is in the form of heap, then it will be easy. But I have taken the data in the simple form, so you understand the heap also as well as heap sorting. क्योंकि हमने रिपीट हो जाएगा ये आपका हीप. अगर हीप बनानी भी आ जाती है, कई बार एलिमेंट दे देते हैं तो आपको हीप क्रिएट करने के लिए पूछ लेते हैं, क्रिएट ए मैक्स हीप या क्रिएट ए मीन हीप. तो मैक्स हीप में हमने क्या देखना है, मैक्सिमम एलिमेंट, और मीन हीप में क्या देखना है, मिनिमम. तो यानी मिनिमम की बात है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और मैक्सिमम की बात है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर. सेम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरह ही ये रहेगा. तो देयर आर टू टाइप, मैक्स हीप और मिन हीप. So this is the element and we want to try to create the heap with help of these elements. Clear? तो इसमें मैक्स, अगर हम मैक्स हीप क्रिएट करेंगे तो हमें किस पे ध्यान रखना है, मैक्सिमम वैल्यू पे. तो सबसे पहले हमने जो वैल्यू ली वो हमारे पास क्या है 23. तो वो हमने इंसर्ट कर दिया 23 और उसके बाद हमने इंसर्ट किया 45. सिंगल एलिमेंट को हमने इंसर्ट ले लिया, वो तो हमारा एक रूट हो गया, तो वो तो अपने आप में मैक्सिमम है. बट सेकंड एलिमेंट वी वांट टू इंसर्ट, दैट इज 2n + 1, दैट विल बी गोइंग टू द left child 1 45. Now you see what is the condition of max if that root will be the always max. हमारा जो मैक्सिमम होगा हीप की मैक्सिमम हीप की कंडीशन ही होती है कि पेरेंट्स हमेशा अपने दोनों चाइल्ड से वैल्यू क्या होगी, उसकी हाइयर होगी. क्या होगा, दो पेरेंट्स की जो वैल्यू है वो हमेशा हाइयर देन द चाइल्ड. मैक्स हीप में. और मीन हीप में क्या होता है, पेरेंट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन देयर चाइल्ड. क्लियर हुआ अंजू उजाला, विवेक? कि हमने क्या करना है कि हमारा पेरेंट्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इससे मैक्स हीप में ग्रेटर होगा, वो ग्रेटर होगा चाइल्ड से, और मीन में क्या होगा, लेस होगा. स्मॉल. तो आगे बढ़े. तो नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट में हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है 12. तो वो हमारे लेफ्ट में आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास क्या है 10 और 6, वो भी हमारे पास सीक्वेंस में आ जाएगा. इससे कोई भी, यहाँ पे आप देखेंगे जब हमने 12 10 या 6 इंसर्ट किया तो इट इज नॉट ब्रेकिंग द रूल बिकॉज हियर यू सी द पेरेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द चाइल्ड. Clear? The rule is not violating, so we no need to be movement here and there. But when we want to insert the 68, now the rule is violating. 12 is less than the child value. Child value is 68, that is greater than through 12. 68 है वो 12 से ज्यादा है, इसलिए जो मेन मैक्स हीप का जो रूल है वो क्या कहता है कि चाइल्ड जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन द पेरेंट जो है वो ग्रेटर देन द चाइल्ड. योर पेरेंट शुड बी ए ग्रेटर देन टू द चाइल्ड. सो यहाँ पे क्या है 68 ग्रेटर है तो वी हैव टू बी एक्सचेंज. 68 की जगह हम क्या डाल देंगे 12 डालेंगे और 12 की जगह हम क्या डाल देंगे 68. We have replaced the value 12 and 68. Again it is violating the rule because 45 is less than 68. What is the condition? 45 is also less than the 60 and 68 is the child of 45. So we have to be change it also. So we replace the value of 68 to or 45 exchanged. So now it will be the completing the rule of the max heap. Now what will be the next value? Next value is 89. So we have inserted at the end is 89. Whenever we insert the 89, again it is violating the rule of the max heap because in max heap same again parents will be the greater than the child. So we have changed 45 with 85. 89 same tha, that same I have taken here. Here we are changing 89 with the 45. You see last में 45 यहाँ पे था 89 यहाँ था.
तो हमने इसको क्या किया, एक्सचेंज कर दिया 89 और 45 को. We have replaced 45 with the 89 and 89 with the 45. Again, it is breaking the rule, so we have replaced with exchange the It's element. better than 68. Yeah, we have replaced 88, 89 and 68. So this is the our max heap. You can check, this is the max heap. So every node you will check. Anywhere you will find, everywhere you will find parent is always greater than their child. So ये हमारा heap create हो गया. Heap create करना आ गया अभी आपको. You can create if some value is given and asked to create the heap. You can create heap now. Clear? और अगर मीन गिवन है तो आप क्या करेंगे, इससे रिवर्स चलेगा. उसमें आपने छोटा देखना, छोटा आएगा तो एक्सचेंज करेंगे, बड़ा होगा तो एक्सचेंज, पेरेंट्स छोटा होगा तो एक्सचेंज नहीं करेंगे, पेरेंट्स बड़ा होगा तो एक्सचेंज करेंगे. इससे रिवर्स रूल फॉलो होंगे उसमें मीन हीप में. क्लियर अंजू, विवेक, वी कैन मेक इट. Yes, ma'am. तो अब हमारे पास समटाइम्स क्या होता है, आपके पास वैल्यू गिवन है, हीप बनाना आ जाता है. पर कई बार जब सॉर्टिंग पूछेंगे तो आपको इस टाइप से, जो लास्ट आपको ट्री दिख रही है ये वाला, ये आपको गिवन होगा. इस टाइप से डाटा आपको गिवन होगा. यू हैव टू बी सॉर्टेड. इस केस में आपको क्या करना है, डाटा को सॉर्ट करना है. तो अब हम सॉर्टिंग की बात करते हैं. ये तो हमारी किसके बारे में थी, क्रिएशन ऑफ हीप किया था हमने. अब अगर हम हीप सॉर्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमेशा if it is a max heap, always we will find root is the maximum. Clear? ये कंडीशन सभी को क्लियर है कि जब भी हमारे पास मैक्स हीप गिवन है तो उसमें जो रूट के वैल्यू है वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है. और अब जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू जाएगी लास्ट पे. यही है, जब भी हम सॉर्ट करेंगे डाटा को तो जो टॉप वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो किसमें जाएगी, एंड पे जाएगी. सो हमें पता है कि टॉप पे जो वैल्यू वो मैक्सिमम है तो किस पे भेज दें हम, एंड पे. अब एंड कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे एंड कौन सा है, दिस इज द एंड एलिमेंट. विल यू ट्राई, विवेक, आर यू हियर, आर यू लिसनिंग? No, ma'am. Vivek leave. He has left. Okay, अंजू या अजला आप बताइए. नेट पैक. हो सकता है उसका नेट फिनिश हो गया हो. बट अबाउट विकास और ये नहीं आ रहे, उनको इंटरनल में बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि जो टीचर्स की अटेंडेंस है वो भी इम्पोर्टेंट है. थोड़ा सा उनको बताओ, सभी को मैसेज ड्रॉप करो कि अटेंडेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर इंटरनल मार्क्स, एंड इंटरनल मार्क्स इज वेरी हेल्पफुल इन दिस केस. So clear? Now tell me, we will discuss later it. What will be the condition for what will be the last element of this tree? Try करेंगे आप. अगर हम इसको एरे में रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्री याद है आपको, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री. पहला एलिमेंट जो रूट एलिमेंट है वो किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा. दूसरा 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ऐसे नहीं जाएंगे. इसमें कोई भी मिसिंग नहीं है, सारे कंटिन्यूटी में है. तो पहला 0, 89 अंजू. Yes. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्या होगा, 89 जो है वो हमारा किस पे आएगा. हेलो उजाला, you are getting me, उजाला? Yes, ma'am. So we are taking the last tree. We are checking window is visible, or window is visible to you people? Yes, ma'am. तो इसमें हमारे पास क्या है कि आप देखेंगे हमने एरे रिप्रेजेंटेशन किया था ना ट्री में. इसमें हमारे पास क्या था, रूट जो है वो पहले 0 पे आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला 1 पे आएगा, सेकंड वाला 2 पे, और ये 3 पे, ये 4, और ये 5 और 6 पे. तो लास्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, 45. 45 जो है वो 6 लोकेशन है पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है, 45. यही होगा ना. जब हम इसको करेंगे कि अगर इसको मेमोरी में स्टोर करेंगे तो लास्ट एलिमेंट किस पे स्टोर होगा, 45 जो है वो लास्ट लोकेशन पे स्टोर होगा, दैट इज 6. 0 से लेके 6 तक हमारी है. तो अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि जो 89 है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, और वो किस में जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा. तो सबसे लास्ट में क्या है, 45. तो हम क्या करेंगे, 89 और 45 को रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से. जैसे हमने सिलेक्शन शॉर्ट में ये किया था ना कि जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था उसको फाइंड आउट करते थे और कहाँ पे रख देते थे, फर्स्ट लोकेशन पे. यही कर रहे थे ना सिलेक्शन शॉर्ट में.
हेलो, Yes, ma'am. हाँ, तो सेम वी आर अप्लाइंग हेयर कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो वो जो भी है, बट हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो फर्स्ट पे है, तो वो हमें कहाँ भेजना है, सबसे लास्ट में भेजना है, इसलिए लास्ट एलिमेंट के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। तो लाइक दिस वे कि 89 इज रिप्लेस विद 60। ये हमारे हो गए ना, देखो आप देखोगे मैंने बनाया है एरे रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रैवल्स 89, 23, 68, 10, 6, 12 और 45। तो यहाँ पे 45 जो है वो लास्ट एलिमेंट है और 89 जो वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे 89 और 45 को, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 45 यहाँ आ जाएगा और ये हमारी ट्री इस टाइप से आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द 45 एंड दिस इज 89। बट जब if 45 is here then heap condition has been violated। क्लियर हो गया? बिकॉज heap में क्या कंडीशन होती है, ये रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर चाइल्ड, बट यहाँ पे 68 इज ग्रेटर देन 45। तो सबसे पहले हम इसको हीप मेंटेन करेंगे। फर्स्ट वी विल मेक हीप, देन अगेन वी विल गो टू द सेकंड स्टेप। सो हम क्या करेंगे, इसके बाद 45 को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, 68 के साथ। बस लास्ट एलिमेंट को भूलते चले जाएंगे, उसको हम ये मान लीजिए कि इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ट्री। आप उसको ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप 89 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, वो सॉर्टेड ऑर्डर में, जो सॉर्टेड ऑर्डर में चलता जाता है उसको रिजेक्ट करते चले जाते हैं। क्लियर? तो आप इसको ये एज्यूम कर सकते हैं कि 89 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड इट इज एडेड इनटू द सॉर्टेड लिस्ट। तो आपका क्या आ गया, 69 और 85 जो है वो रिप्लेस हो गया। अब हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, what is the second maximum element, that is 68। क्या है, 68 है। और अब हमारा 68 सेकंड लास्ट एलिमेंट लोकेशन पे कौन सा स्टोर है, सेकंड लास्ट एलिमेंट 89 को छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। उसके बाद हमारा कौन सा एलिमेंट है, उससे पहले 89 से पहले लास्ट लोकेशन 12 या ये किसके 12 मैम। फिफ्थ लोकेशन पे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको सेकंड लास्ट पे डाल देंगे, सेकंड लास्ट लोकेशन पे, यानी वी विल एक्सचेंज 12 एंड 68। हमने क्या किया, 12 और 68 को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पे 68 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया। तो अगेन वी विल फॉलो द रूल, कौन सा, वही रूल जो हमारा मैक्स ट्री का है। मैक्स ट्री का है तो हमने क्या किया, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था, 45। इनमें से हम जब भी हम चेंज करते हैं ना रूट पे, तो देखते हैं लेफ्ट और राइट में कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होता है उसको ले जाते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो उससे बड़ा हो जाएगा अगेन, तो फिर हमारा काम जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, वर्क विल बी इंक्रीज और एफर्ट्स विल बी इंक्रीज। सो 45 हैज बीन रिप्लेस्ड विद 12। क्लियर? नाउ अगेन वी विल कंपेयर, सेम प्रोसेस चलेगी तो रिकर्जन होगा इसमें। फिर हमने क्या देखना है, नेक्स्ट 45 अब हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो ये किस पे जाएगा, थर्ड लास्ट पे, पीछे से जो लास्ट में थर्ड होगा उस एलिमेंट पे जाएगा। वहां पे क्या अभी 6 है, तो हम क्या करेंगे, 45 को और 6 को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, 6 को और 45 को एक्सचेंज 45 विद 6। तो ये आपका इस फॉर्म में बन जाएगा। क्लियर? 6 ऊपर आ गया और 45 अपनी लोकेशन पे चला गया। क्लियर हो गया? तो अब हमारे फिर वही रूल हमने मेंटेन करना पड़ेगा, 23 और 6 वाला। तो 6 में से 23 और 12 में कौन सा ग्रेटर है, 23 इज ग्रेटर, सो विल एक्सचेंज 6 विद द 23। हमने क्या करेंगे, 23 को और 6 को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। और तो यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज होकर ये वाला ट्री बन गया। अब हमारा फोर्थ जो एलिमेंट है, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो क्या है, 23। उसको किस लोकेशन पर डालेंगे, पीछे से फोर्थ लोकेशन, वो क्या है, 10 वाली पे। तो 10 को 23 को क्या कर देंगे, अगेन हम एक्सचेंज कर देंगे। और एक्सचेंज करते ही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 जो है 10 से ग्रेटर है, तो 12 को 10 को भी क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो 12 को और 10 को एक्सचेंज कर देंगे तो हमारे पास लिस्ट ये हो जाएगी। तो अब हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 12। अब हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो 12 है। किस लोकेशन पे आएगा, पीछे से फिफ्थ लोकेशन पे। पीछे से फिफ्थ लोकेशन कौन सी है, 10 है, ये लोकेशन है ना पीछे से वाले। तो यहाँ पे हम क्या, वापिस हमारा 12 वहीं डाल देंगे, है ना, 12 डाल देंगे। तो अब हमारी कंडीशन नहीं चल, इसको फॉरगेट करें तो 6 ग्रेटर देन है, तो अब क्या हो जाएगा, 6 और 10 जो वो एक्सचेंज हो जाएंगे। 10 सबसे बड़ा है तो वो 6 वाले पे आ जाएगा, 6 सबसे छोटा है तो वो सबसे छोटा पे आ जाएगा। अब आप इस ट्री को ट्रैवर्स करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, इफ यू विल ट्रैवर्स इन द एरे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगी, 6, 10, 12, 23, 45, 60 और 8 और 89। क्लियर हो गया? दिस इज द sorted element of the list। तो ये आपकी जो लिस्ट थी, तो इसमें आपके पास दो क्वेरी क्रिएट हो सकती है, दो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं यहाँ से।
आपको लिस्ट दे दी जाए, लिस्ट इज गिवन एंड यू हैव क्रिएट ए हीप. हीप में भी टू टाइप ऑफ हीप, मैक्स कैन बी एक्स और मिनिमम मैक्स एज वेल एज मीन आल्सो. तो मीन में आपका रूल थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाएगा. जहाँ छोटा था, जहाँ पे हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे थे वहाँ क्या ले लेंगे ना, अभी हम लार्जर ले रहे थे वहाँ स्मॉल हो जाएगा, जहाँ स्मॉलर ले रहे थे वहाँ क्या हो जाएगा लार्जर. या फिर दूसरा क्वेरी क्या होगा कि हीप इज गिवन, हीप ट्री आपको गिवन होगी, यू हैव टू बी अप्लाई द हीप sorting. So this will be the second case, you have to be apply the heap sort. Clear? Clear हो गया आपको heap sort? अंजू जाला? Yes, ma'am. तो इसी के साथ Yes, हमारी ma'am. सारी जितनी भी ma'am. sorting थी that has been completed. So now we will comparison their complexity कि कौन कौन से हमने algorithm डिस्कस किए. बबल सॉर्ट हमने डिस्कस किया, वो हमारा कंपैरिजन सॉर्ट है. वर्स्ट केस हमने देखा, उसका बिग नोटेशन है. और वर्स्ट केस एक्स्ट्रा स्पेस एक लेता है जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट को हम एक्सचेंज करते हैं, कंपेयर करके ना एक ही एलिमेंट को एक्स्ट्रा एक्सचेंज करते हैं. तो जब भी आपने स्वैप देखा था ना, हमने हर फंक्शन में क्या यूज किया है, स्वैप किया है. स्वैप में तो हमने लिया था थर्ड एलिमेंट लिया है टी. ए और बी तो उतना स्पेस लेता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. एक नया एलिमेंट टी लिया तो उसने एडिशनल स्पेस लिया, और ये आपकी क्या है, स्टेबल है. क्लियर हुआ? सेकंड जो सॉर्टिंग थी वो क्या थी हमारी, सिलेक्शन सॉर्ट. उसमें भी हमारा वो भी हमारा कंपैरिजन सॉर्ट है, बट इट इज ए वर्स्ट केस टाइम complexity is same as bubble sort. It is also have a additional space one only and it is not stable. ये आपकी इधर उधर मूवमेंट हो सकती है. It is not a stable sort. इंसर्शन सॉर्ट में भी वही सेम कंडीशन है, तीनों सॉर्ट में आपकी सेम कंडीशन है. बट मैंने कहा था इंसर्शन सॉर्ट आपका बेस्ट होगा उस केस में जब इसके डाटा सॉर्टेड होते हैं. तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज कंपैरिजन ये सब करना नहीं पड़ता. सिलेक्शन सॉर्ट होता है आपका छोटे डाटा पे ही काम करता है, और बबल सॉर्ट भी स्मॉल डाटा पे ही काम करता है, पर मिडिल लेवल पे काम करता है. तो उनका वे अलग है. सिलेक्शन सॉर्ट में मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करके उसकी लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं. उसके बाद हीप सॉर्ट अभी हमने डिस्कस किया. हीप सॉर्ट का हमारे पास क्या है, अनलोगन है. यहाँ पे भी स्पेस आपको एक ही एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड पड़ती है, बट इट इज आल्सो नॉट ए स्टेबल सॉर्टिंग. मर्ज सॉर्ट आल्सो हैविंग द सेम अनलोगन सेम एज ए हीप सॉर्ट, or this is also having this merge sort having a more space because we have to make a partition. तो सभी एलिमेंट को अलग अलग स्टोर करके रखते हैं, तो जितने नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स हो उतना नंबर आपको एडिशनल स्पेस चाहिए, तभी आप उस डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं. क्विक सॉर्ट में हमारे पास क्या है, वर्स्ट केस में जब डाटा सॉर्टेड होगा तो वही कम्प्लेक्सिटी होगी जो बबल सिलेक्शन या इंसर्शन की होगी. बट इफ इट इज ए एक्स्ट्रा स्पेस ये लोगन लेता है क्योंकि इट विल बी इन फॉर्म ऑफ ट्री. बट इसका वर्स्ट केस है, बेस्ट केस होगा वो भी लोगन होगा. तो जो बेस्ट केस है वो हमने नहीं लिखा, क्या बेस्ट वाला बेस्ट केस है वो क्या होगा, बेस्ट वाला लो केस होगा लोगन. ये एक्स्ट्रा स्पेस एंड वर्स्ट केस कह सकते हैं, इसको बेस्ट कह दूं. एक्स्ट्रा स्पेस. क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है, रेडिक सॉर्ट. रेडिक सॉर्ट में हमने देखा ब्रैकेट, तो उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस उतने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतना ही चाहिए, बट उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ डिजिट पर डिपेंड करेगी. ये हमारा कंपैरिजन सॉर्ट नहीं है. तो कई बार डायरेक्टली 2 नंबर में कम्प्लेक्सिटी पूछी जा सकती है, तो आप इस कम्प्लेक्सिटी को याद रख सकते हैं. दिस इज द वर्स्ट केस एंड दिस इज द बेस्ट केस. मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आपको याद रहेगा बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी. These are the complexity. तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ये जो सॉर्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है. आज हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे सर्चिंग का, जिसमें हमने दो तरह की सर्चिंग होती है. आगे बढ़े? क्लियर हो गया या यहाँ पे आपकी क्यूरी है कोई? अंजू और उजाला, हैव यू एनी क्यूरी, वांट टू आस्क? No, ma'am. तो अगले स्टेप पे चले. Okay. सर्चिंग कर लेते हैं हम. कल और स्टूडेंट्स आएंगे तो देख लेंगे, अगर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा. वी विल रिपीट इट इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज वी विल मेक इट कंटिन्यू. तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक जो हमारे पास सर्चिंग का. आई विल शेयर द विंडो ऑफ सर्चिंग विंडो, आई विल शेयर विद यू पीपल. I am sharing the next window, PPT window, that is searching.
Window is visible to you people? Yes, ma'am. So there are two type of searching mainly. What is there are two type of searching. कौन सी सर्चिंग है हमारे पास, आपने पढ़ी भी होंगी पहले भी वैसे तो. इट इज वेरी इजी. फर्स्ट आपकी लीनियर सर्च है जो हमने डिस्कस की हुई है शायद. हमने सर्चिंग एलिमेंट का उसमें भी किया था ना, ट्री में भी किया था. और दूसरा है बाइनरी सर्च. एरे में भी एलिमेंट सर्च किया था हमने. एरे में इंप्लीमेंटेशन की थी सर्चिंग ऑफ एलिमेंट इन एरे या नहीं किया था? एनजूस वाला किया था या नहीं किया था? हैव यू रिमेंबर और नॉट? कोई बात नहीं, लेट मी विल कम टू द लीनियर सर्च में क्या होता है, हम किसी एक एलिमेंट को उठाते हैं और उसको सबके साथ कंपेयर करते हैं. पहले से करते हैं, फिर दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से. अगर वो मिल जाता है, फर्स्ट पे मिल गया तो ओके, नहीं है तो फिर नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे. जब तक लास्ट तक कंपेयर करते जाएंगे जब तक वो लिस्ट में नहीं आ जाता. इट इज एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, फाउंड और नॉट फाउंड. क्लियर? हमने इसमें भी याद हो बाइनरी सर्च ट्री में किया था ये वाला सर्चिंग का एल्गोरिथम. तो लीनियर सर्च में क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्च होती है. Linear search is a sequential search which use a loop to step through a array starting with the first element. पहले एलिमेंट से सर्च करना स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंशियली से चलते हैं वन बाय वन और कहां तक जाते हैं, एंड तक जाते हैं. इट कंपेयर ईच एलिमेंट विद द वैल्यू being searched for and stop when either the value is found of the end of the array is encountered. या तो मिले वैल्यू मिल जाएगी तब ये स्टॉप करेगा या फिर आपका एरे का एंड हो जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा, देयर इज नो स्पेस. So after that it will be end. If the value is being searched is not in the array, the algorithm will unsuccessful search to the end of the array. If value is not found, it means the search is unsuccessful because we don't found the elements. Clear? It is also stored in linear order as we have already discussed. Array is always stored in the linear sequence. But access is directly, we can access directly the element, but we are comparing, we are searching the element, so we have to be compare with each and every element. हर element के साथ हमें compare करना पड़ेगा. Then only we can find out the element is existing in the list or not. ये element एक list में exist करता है या नहीं करता, वो तभी पता चल पाएगा जब हमारे array element से उसको compare करेंगे. सर्च के दोनों केस हो सकते हैं, सक्सेसफुल भी हो सकती है और अनसक्सेसफुल भी हो सकती है. सक्सेसफुल if element is existing in the list, it will be found. If it is not exist in the list, it will not be found, so search will not be successful. So linear search है ये very simple है, it is very easy and understand and very easy to implement also. It does not require any array to store in any particular order में के लिए जरूरत नहीं. इसमें disadvantage क्या है, it have very poor efficiency because it take lot of comparison to find a particular code in big file. अगर आपकी फाइल की साइज बड़ी है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास बहुत ज्यादा है, सो यू हैव टू बी कंपेयर. जैसे एरे में हम कहते हैं ना कि भाई एलिमेंट बहुत ज्यादा है, हमें अगर उसको इंसर्शन डिलीशन करता है तो इट विल बी डिफिकल्ट. ऐसे ही यहाँ पे अगर हमारे पास एलिमेंट 1000 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट के साथ हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा. हम 1000 एलिमेंट से सर्च करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. तो यहाँ पे ये इनएफिशिएंट, पुअर एफिशिएंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ज्यादा हो तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन भी ज्यादा ही करने पड़ते हैं. वी हैव टू बी लार्ज कंपैरिजन इन केस ऑफ डाटा इज लार्ज. इनपुट लार्ज है तो कंपैरिजन भी आपका क्या होगा, लार्ज होगा, मैक्सिमम होगा. देयरफॉर इट इज कंसीडर एज ए पुअर एफिशिएंसी. परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम स्केल लीनियर विद द साइज ऑफ द एलिमेंट. हमेशा ऑलवेज इट परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन इनपुट. आपका लीनियर सर्च है उसकी जो साइज है या उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी स्पीड है, वो किस पर डिपेंड करेगी, ऑलवेज इट विल बी डिपेंड ऑन द इनपुट. हमेशा ये उसकी इनपुट पर डिपेंड करेगी, कितने नंबर ऑफ इनपुट है उसी से डिसाइड होगा it will be fast or slow. Linear search is slower than other searching algorithm. दूसरा जो सर्चिंग है इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दिस इज द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एलिमेंट है, लिस्ट है, और इसमें हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, 85 फाइंड आउट करना चाहते हैं. क्लियर? हेलो, आर यू देयर? Yes, ma'am. उजाला एंड ये दिस मंजू. Yes, हमने ma'am. क्या है कि हमारे पास Yes. एलिमेंट है, हम 85 फॉर एग्जांपल सर्च करना चाहते हैं इस लिस्ट में, तो सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे, 10 से. एग्जिस्ट करता है या 10 नहीं से. करता? 10 इज नॉट इक्वल टू 85. नहीं मैम. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे. नेक्स्ट पे भी हमारे पास 85 था, 86 है, वो बाय मिस्टेक हो गया क्योंकि 85 है. ये हम जो सर्चिंग शुरू करी है दैट इज 86. इट इज बाय मिस्टेक 26. क्लियर? सो इट इज 86 and it is not exist, so we have go to the next element.
we will compare, it is not exist. Again we go to the 18th, it is not exist. Clear? Compare with the next element, is it exist? No. And we will go to the next and compare, and now we have reached the on the element where it is, this is the we have found, यानी हमने सिंपली हर किसी एलिमेंट से कंपेयर करते हुए चलना है, और we will say this is the element we are found. Clear? Linear search, it is very simple. I think so आपको रिमेम्बर Yes. रिमाइंड कर गया होगा कि आपने Ma'am. बनाया हुआ ये है ना, क्या हुआ ना. So we are coming to the analysis. Best case इसका है होगा कि मैक्सिमम पहले एलिमेंट पे मिल सकता है और लास्ट में, तो इसका बेस्ट केस होता है n/2. बेस्ट केस क्या होता है n/2, और वर्स्ट केस होगा मैक्सिमम. मैक्सिमम कितना n, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है. तो वर्स्ट केस में जो हमारा टारगेट होता है इसका जो कम्प्लेक्सिटी वो क्या है, जो नोटेशन n, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही कंपैरिजन होंगे मैक्सिमम. तो इसकी कम्प्लेक्सिटी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ इनपुट साइज होगा. Next algorithm, that is a binary search algorithm. Binary search algorithm same is as we have discussed in merge or quick, divide and conquer methods. Here we are dividing data into the two parts and then we are searching into the left side. If it is exist, okay, otherwise no found. If it is greater than the middle value, we will go to the right side. छोटी वैल्यू है तो लेफ्ट में जाएंगे, जैसे बाइनरी सर्च में सर्च करते हैं ना, रूट से छोटा तो लेफ्ट में जाएंगे और नहीं तो राइट में जाएंगे. उसी की तरह ये भी हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है, दैट इज अ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड. इट विल सर्च इन हाफ ऑफ द एलिमेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आल्सो स्मार्ट सर्च थ्रू सॉर्टेड डाटा. यहाँ पे बाइनरी सर्च की सबसे बड़ी जो कंडीशन है कि डाटा शुड बी सॉर्टेड ऑर्डर. आपका जो डाटा है, आपके पास जो डाटा की लिस्ट है जिसमें आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं, the data in which you want to search the element, that should be in a sorted order. डाटा जो वो आपका किसमें होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तभी आप उस पे बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर सकते हैं. If data is not sorted order, you cannot apply the binary search tree. Then you have to be apply the linear search. Clear? Condition is clear. Binary search only can be applied if data is in sorted order. If data is not in sorted order, then we will not apply the binary search tree. Sorry, binary search. Then we will apply only the linear search. So the initial, what we decided, what will be the step for binary search? Initial search region is the whole array. पहली बार हमारा पूरा array लेके चलेंगे, and we will look at the data value in the middle of the search region. जहाँ हमने सर्च करना उसकी middle value को उठाएंगे. If you have found your target stop, अगर हम कंपेयर करेंगे मिडल वैल्यू के साथ जिस एलिमेंट को हम कंपेयर सर्च करना चाहते हैं, the element which we want to search, first we will compare with the middle value. क्या करेंगे, first we will compare it with the middle value. If it is exists, we will stop because our element has been found. If it is not element, then what we will do, we will come to the left side. If it, we will check the value is less than or greater than. If value is less than, we will come into the left side. If it is greater than, we will come to the right side. If your target is less than the middle data value, the new search region is the lower half of the data, yani left side. If your target is greater than the middle data value, the new search is higher half of the data. Clear? And again we will go to the second step. Same step will be followed. This is the algorithm for the binary search tree. Now we are taking the example and we'll try to understand it. Clear? This is the list given as, this is the list. This is given as we want to search 18 in this given list. जो लिस्ट है इसमें हम 18 वैल्यूज है उसको सर्च करना चाहते हैं. तो पहला एलिमेंट होगा वो कौन सी पोजीशन पे है, लोअर पोजीशन पे है, और जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सी लोकेशन पे है, हायर लोकेशन पे. क्लियर? बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द मिडल वैल्यू. मिडल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लोअर वैल्यू एज वेल एज हायर वैल्यू, दोनों का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. देन वी विल गेट द मिडल वैल्यू. तो सर्च द 18, फाइंड द मिडल वैल्यू यूजिंग द बिलो फॉर्मूला. Low plus high divided by 2 means 1 plus 8 divided by 2. What will be the value? 4. So we will check in the middle is 18 is there or not. Clear हो जाला? हम क्या करेंगे, हमने लोअर वैल्यू को और हाई वैल्यू को दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया. इससे हमें क्या मिल गया, मिडल ऑफ द लिस्ट. मिडल लोकेशन हमें लिस्ट की मिल गई. मिडल लोकेशन पे हम चेक करेंगे जो एलिमेंट हम ढूंढ सर्च करना चाहते हैं क्या वो मिडल लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है.
yes या no. At this moment it is no, because in the fourth location there is 21 and we want to search 18, so it is not exist. So क्या करेंगे हम, अगर हमारा एलिमेंट, अब क्या चेक करेंगे कि इज इट लेस देन और ग्रेटर देन. तो एलिमेंट हमारा क्या है, लेस देन है, तो हमें क्या जाना पड़ेगा, Yes. लेफ्ट में Yes. जाना पड़ेगा. then लेफ्ट में जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, जो हाई थी वैल्यू, जो हाई वैल्यू थी हमारी, वो अब क्या हो जाएगी, मिड -1, क्योंकि अभी हमें यही सर्च करना है. तो अब हमारा हाई इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, मिड -1. सो नाउ व्हाट विल बी द हाई, 3, एंड व्हाट विल बी द लो वैल्यू इज 1. So we will calculate again same, the middle value, low plus high. Low is 3 and high is 1. What is low? Low is 1 and high is 3. Middle -1 means 3. So now we add and we find out the 2. 2 is, we will compare with the 2. So it is not a location, but we check less than or greater than. It is greater than. Now it is a greater than. Clear? अब क्या होगा, ये आपका ग्रेटर देन होगा. तो ग्रेटर देन हो गया तो हम क्या करेंगे, लो को चेंज करेंगे. नाउ वी विल चेंज द लो. सो व्हाट विल बी द लो इन दिस केस, मिड +1. तो आपका जो 2 है वो क्या हो जाएगा, अब लो हो जाएगा. 2 जो लो लो है हो इसको, जाए. इसको हम ऐसे दिखा देंगे, लो 1 इज विल आल्सो ए ट्रू वैल्यू, यहाँ चला जाएगा आपका. क्लियर? तो अभी तक ये था, पर 2 हो गया, तो अब 2 + 3 कितना हो जाएगा, हायर 3 है तो 5. 5 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो वी आर कमिंग टू सेकंड टाइम आल्सो कमिंग द 2. क्लियर? सेकंड टाइम आल्सो कम 2. अगेन इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट दिस लोकेशन. तो व्हाट वी विल डू, सेम, इट इज लेस देन और ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन. तो कौन सा चेंज होगा, लो चेंज होगा. लो क्या हो जाएगा, अब आपका लो जो हो क्या हो जाएगा, 2 मिड +1. So again we will go to the mid +1, that will become 3. 2 + 1, 2 + 1, ये मिक्स हो जाएगा. स्पेस कम है इसलिए इधर नहीं आ रहा, कि हम इसको इधर कर सकते हैं. ये यहीं पे आ जाएंगे दोनों, लो और मिडल. क्लियर? बिकॉज इसमें कोई चेंज नहीं है. तो इसके बाद पहले टाइम में ये था, और अब लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 पे आ जाएंगे दोनों. बोथ आर इन मिड एंड आई बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू. So 3 + 3, 3 + 3 is equal to 2 divided by, now 3 + 3, 6 divided by 2, 3. 6 divided by 2. 2. So now it is a third location, and what is third location, 18 is already on the third location. So now we found the 18. Clear? तो हमने क्या किया, पहले आपको किया, फिर उसके हाफ में गए, और फिर उसके हाफ में हमने गए. इस टाइप से हमने इसको सर्च किया. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. मिडिल वैल्यू हम कैलकुलेट करते रहेंगे. Yes. जब वैल्यू लेस देन होगी तो क्या होगा, हम लेफ्ट में आ जाएंगे, उसके हाई को चेंज कर देंगे. ग्रेटर होगी तो लो को चेंज करेंगे. जब ग्रेटर होगा तो किसको चेंज कर देंगे, लो को. जब हाई होगा तो उसको लोअर हायर को चेंज कर देंगे. एलिमेंट ग्रेटर देन है तो लो को चेंज कर देंगे, और एलिमेंट लेस देन है तो हाई को चेंज कर देंगे. हाई को मिड -1 कर देंगे, और नहीं तो लोअर को मिड +1 कर देंगे. क्लियर? So after every examination the value search region became half. आपने देखा कि हमारा search region है जो वो क्या हो जाता है, half हो जाता है. And the first iteration of loop, your search region is the whole array. The second iteration it is half array. Third iteration it is quarter, and quarter में उसका भी quarter. तो हम कह सकते हैं the kth iteration it's 2 1 divided by 2 की power k. पहली बार 1 to power 2, the second time 2 to power 4, and next time 2 to power 8. Like this way it is going to. So k -1. So what is the complexity? Same like log n. Very less complexity, very less time it will take. This is the complexity of the binary search tree. Now what is the advantage of binary search tree? It eliminate half the list from further searching by using the result of each comparison. इसका एक पहला फायदा तो क्या, डाटा कम कर देती है क्योंकि हाफ कर देती है. दूसरा बेनिफिट जो है, सेकंड क्या है, इंडिकेट वेदर द एलिमेंट being searched is before or after the current position in the list. हेलो, Yes, ma'am. विंडो दिख रही है आप लोगों को? No, ma'am. No, ma'am. Window is not visible. Okay, I will say now. It is coming, I think so now. Is it visible or it is taking time?
नाउ इट इज विजिबल। Yes, ma'am. हाँ, तो हमने क्या कहा कि क्या करता है कि इट्स एलिमेंट द एलिमेंट्स को पहले क्या करता है, हाफ एलिमेंट को एलिमिनेट कर देता है। दूसरा क्या करता है कि आपके जो पोजीशन है उससे बता देता है कि एलिमेंट पहले है या बाद में है। सो हमारी जो सर्च है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, स्मॉल एलिमेंट्स में हमें इसको ढूंढना पड़ता है। तो ये जो हमारी सर्चिंग है इट विल वेरी यूजफुल फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। लीनियर सर्च से बहुत बेटर है इन केस ऑफ हमारे पास बहुत बड़ा डाटा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 डेटा है तो पहली बारी में 500 हो जाएगा, सेकंड टाइम में कितना हो जाएगा 250 में ही सर्च करना, फिर हमारा 250 से भी 125। सो इट विल जस्ट मेक द हाफ ऑफ द एलिमेंट। तो जैसे मान ली 250 फिर 125 फिर 75 फिर 75 से तो उसी में किसी में मिल जाएगा, नहीं तो और पीछे आती चली जाएगी। So it is a very significantly search, better search than linear, and it is a very good search. इसका भी उतना ही है जितना अपना आ रहा है उसमें है। बाइनरी सर्च ट्री में भी जो सर्चिंग एलिमेंट है उतना ही इसका भी हमारा एलिमेंट सर्चिंग है वो, दैट इज आल्सो लाइक सेम। क्लियर है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, ये आपका रिकर्सिव अप्रोच से ही आप इसको यूज करेंगे, देन इट्स रिक्वायर ए मोर स्टैक स्पेस, मेमोरी स्पेस ज्यादा लेता है रिकर्जन। हमने रिकर्जन मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं किया था, तुम्हें उसने समझाया था ना जो अपना क्या नाम है सर का, सुंदर बल सर ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था रिकर्जन, है ना। हेलो। Yes, ma'am. किया था। तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है या आप लोगों को क्लियर है रिकर्जन? एक दिन मैं टाइम लेके आपको बताऊंगी उसमें कि कैसे कैसे वैल्यू स्टोर होती है, कैसे वो स्टोरेज करता है। वैसे मैंने भी बताया था आपको प्रोग्राम बनाना, तो रिकर्जन में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। और वैसे हमने ट्री के जो प्रोग्राम बनाए हैं या आपने हीप सॉर्ट का प्रोग्राम बनाया है ना, क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम है, दिस ऑल आर द रिकर्सिव प्रोग्राम बिकॉज वी आर कॉलिंग फंक्शन इट्स। तो इंटरेक्शन ऑफ बाइनरी सर्च विद मेमोरी हायरार्की कैश इज पुअर, कि मेन मेमोरी के साथ इसका इंटरेक्शन बहुत कम होता है, तो कैश में इसका ये क्या है आपका पुअर एल्गोरिथम। तो इसी के साथ ही हमारे पास क्या हो गया, और सर्चिंग जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो 4th यूनिट में हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी हमने सभी एल्गोरिथम की डिस्कस की है ना। कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम सर्चिंग की हमने सभी की डिस्कस कर ली है, और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हमने कर लिया है, सभी एल्गोरिथम्स के एनालिसिस की कितना टाइम लगेगा, कितना स्पेस लगेगा, और सभी की हमने प्रोग्रामिंग कर ली है। ये आज वाले जो प्रोग्राम हैं, आज जितने भी सर्चिंग हमने की है, सॉर्टिंग और सर्चिंग, इसके प्रोग्राम मैं आप लोगों को भेज देती हूँ, आप एक बार उसको पढ़ के देखना। फिर कल हम उसको, अगर आपकी क्यूरी होंगी तो उसको डिस्कस करेंगे, अगर समझ में आ जाता है तो वी विल गो फॉरवर्ड। ठीक है उजाला। Yes, ma'am. अंजू, मैंने कल वाले प्रोग्राम आपको भेज दिए थे, पीछे वाले जो प्रोग्राम थे वो मैंने आपको मेल कर दिया है, आप लोगों को रिसीव हो गए होंगे। तो आज वाले प्रोग्राम जो मैं आपको सेंड कर देती हूँ, और इसको हम कल, बाकी भी लोग होंगे तो ठीक है, अगर आपकी क्यूरी रहती है तो आई विल डिस्कस, अदरवाइज आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, आई विल टेल यू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा सॉर्टिंग हो गया, हमारा सर्चिंग हो गया, एंड कम्प्लेक्सिटी हो गई है। हैशिंग स्कीम है या कंपैरिजन ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हमने कर दिया है। नया टॉपिक हैशिंग और ग्राफ है। तो पहले हम ग्राफ को कर लेते हैं, ग्राफ के और अर्जेंसी मैट्रिक्स और अर्जेंसी लिस्ट, जो ग्राफ का टॉपिक रहता मेन, उसके बाद स्पैनिंग ट्री हमारा रह जाएगा, और फिर फाइल का रह जाएगा। 3 टॉपिक हमारे, और हैशिंग 4 टॉपिक रहते हैं। तो कल कोशिश करेंगे हमारे मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाए ना, कल तो नहीं हो पाएगा, 2 दिन लेगा ग्राफ भी, और 1 दिन हमारा लगेगा मिनिमम स्पेनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट पाथ में 2 दिन, और 1 दिन फाइल एंडिंग, 4-5 दिन तो और लगेंगे हमें सिलेबस कंप्लीट करने में। यानी नेक्स्ट वीक में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, इस वीक में तो नहीं हो। क्लियर। तो आज के लिए आई थिंक सो है ना, tomorrow we will discuss the remaining part. Yes. Clear?